The topic which we are going to discuss is the evolution of public administration phase 2. So we had studied phase number 1 earlier. Now we will be focusing our attention on phase number 2 with respect to evolution of public administration. In phase number 2, it's dealing with from 1927 to 1937. For almost 10 years, principles of administrations were developed. In the first phase, we saw that how Woodrow Wilson started through his essay a discussion on politics and administration dichotomy. And from then onwards, everybody started accepting public administration as a separate discipline. So naturally, it was understood that now it is a separate social science. It needs to be studied scientifically, and certain principles needs to be established. Now, in this particular phase, we will be discussing some of those principles. All right, we'll go one by one. During this phase, scholars believe that public administration is a separate activity with its own well-marked field and principles. In 1927, Willoughby's book, Principles of Public Administration, was published, in which he asserted that in administration there are certain fundamental principles of general application analogues to those characterizing any science. They could be discovered and administrators would be expert in their work if they learned how to apply these principles. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विलोबी ने किताब लिखी प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. उस किताब में उन्होंने ये फोकस किया कि हम एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स डेवलप कर सकते हैं. उन प्रिंसिपल्स को अगर आप फॉलो करोगे तो it will definitely help the administrators to implement the policy in a much better way, which will bring about efficiency and economy in the implementation process. ठीक है. सो जो एक्सपर्ट्स हैं उनको इन प्रिंसिपल्स में ट्रेन करना भी उतना ही जरूरी है. ऐसा नहीं है कि कोई एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है और उसको ऑटोमेटिकली ये प्रिंसिपल्स पता होंगे. सो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आपको वो प्रिंसिपल्स ट्रेन करना पड़ेगा ऑफिशियल्स को, तभी जाके वो सही तरीके से इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर पाएंगे. And that application will definitely help in the implementation of those policies of the government. Further efficiency in administration would be increased if these principles are applied. By the very fact that the principles of administrations were principles, it therefore followed that they could be applied successfully in any administrative setting. इसका मतलब ये होता है कि those principles which were developed, they were believed to be such that it will be applicable in every country. हर एक कंट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में ये प्रिंसिपल्स हम अप्लाई कर सकते हैं. तो वो प्रिंसिपल जैसे प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, कॉपरेशन हो, जो भी प्रिंसिपल है जो इस 10 सालों के टाइम फ्रेम में जो डेवलप किए गए, तो इनको लगा कि ये हम हर जगह पे हर कंट्री में, हर कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में हम ये प्रिंसिपल्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो भी सक्सेसफुली. ऐसा इन लोगों का क्लेम था. Among the most significant works relevant to this phase were Mary Follett's Creative Experience, Henry Fayol's Industrial and General Management, and James Mooney and Alan Riley's Principles of Organization, all of which delineated varying numbers of overarching administrative principles. तो फॉलेट हो जाए, फेयोल हो जाए, मूनी हो जाए, रेलीज हो जाए, इन सभी लोगों ने अपनी किताबों में, अपने वर्क्स में, अपने थियरीज में अलग अलग प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कशन किया है, जो उनको लगता है कि अगर इन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाए तो हम एडमिनिस्ट्रेशन में इफिशिएंसी और इकोनॉमी दोनों चीज अचीव कर सकते हैं और पॉलिसीज को सही तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं. However, the landmark study in the field which enhanced the prestige of the discipline was the publication of Luther Gulick's and Lyndon Urwick's papers on the science of administration. तो 1937 में जो किताब पब्लिश की गई, Papers on the Science of Public Administration, this was a revolutionary book. This was a revolutionary publication made by Gulick and Urwick, which basically talked about the different principles which were uniformly implemented all throughout America. इनको लगा कि इन्होंने जो principles बताए हैं वो सभी जगह पे universally हम apply कर सकते हैं. According to these scholars, the general thesis of this paper is that
there are principles which can be arrived at inductively from the study of human organization, which should govern arrangements for human associations of any kind. तो इस बेसिकली इस पेपर में इन्होंने साइंटिफिकली स्टडी किया कि किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, वो स्टडी करने के बाद आप बेसिकली ऐसे प्रिंसिपल्स डेवलप कर सकते हो जिससे किसी भी एनवायरनमेंट में, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग में हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने साइंटिफिकली इवॉल्व किए हैं। यहाँ पे किसी भी तरीके की बायस, प्रेजुडिस या कहीं भी इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है। These principles are based on logic, rationality, law and objectivity. ठीक है, यहाँ पे वैल्यू न्यूट्रलिटी है, यहाँ पे किसी भी तरीके का बायस या प्रेजुडिस नहीं होने की वजह से ये प्रिंसिपल हर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में यूनिवर्सली हम अप्लाई कर पाएंगे, ऐसा इनका क्लेम था। Further, they propounded the famous concept of post corp. दिस पोस्ट कॉर्प एक एक्रोनिम है जिसका मैं फुल फॉर्म आगे जाके आपको बताऊंगा, जो लूथर ग्यूलिक और लिंडल उर्विक ने डेवलप किया। द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल्स, तो ये पोस्ट कॉर्प आर द डिफरेंट प्रिंसिपल्स व्हिच नीड्स टू बी अप्लाइड इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। Resultantly, public administration touched its zenith, and this phase is regarded as the golden era in the evolution of the discipline. तो अगर क्वेश्चन कोई पूछता है आपको कि विच इज द गोल्डन एरा ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो दैट इज द सेकंड फेज, फेज नंबर 2, क्योंकि इस वक्त सभी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग डिसिप्लिन है और उसके भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं जो हम यूनिवर्सली सभी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ये पोस्ट कॉप क्या है, व्हाट इज दिस पोस्ट कॉप? तो इसका फुल फॉर्म अगर हम देखें, इट इज एन एक्रोनिम व्हिच मींस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ठीक है, तो ये सारे प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली कि किसी भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर ने प्लानिंग करनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए, सही तरीके से लोगों को रिक्रूट करना चाहिए, मतलब स्टाफ करना चाहिए, उन लोगों को सही डायरेक्शन देनी चाहिए, उन लोगों में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, एंड द लोअर ऑफिशियल हैज टू रिपोर्ट टू द सीनियर्स विद रिगार्ड्स टू द वर्क डन बाय देम। और बजटिंग भी करना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो कितना बजट लगेगा। तो ये दीज प्रिंसिपल्स आर इवन फॉलोड टुडे, ऐसा नहीं है कि ये प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं किए जाते हैं। व्हाट्सकॉप इज रिलेवेंट इवन टुडे, नॉट ओनली इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बट इन एनी काइंड ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये 7 प्रिंसिपल्स आपको इंप्लीमेंट करने ही पड़ेंगे, तभी जाके चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो सकता है। Organizational theorists often dub this school of thought administrative management since it focused on the upper hierarchical levels of organization. तो देखिए, ज्यादातर इस पर्टिकुलर पॉट्सकॉप ये जो भी थियरीज इस समय में लिखी गई, वो मैनेजमेंट की थियरीज थी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी ऐसा सच नहीं थी, ये सारी मैनेजमेंट की थियरीज थी जिनको दे वर मोस्टली फोकसिंग ऑन द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन इनडायरेक्टली ये पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर भी इंपैक्ट कर रहे थे। इनडायरेक्टली ये सारे प्रिंसिपल्स प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में भी इंप्लीमेंट किए जा रहे थे। लेकिन अगर आप सही तरीके से इन प्रिंसिपल्स को देखोगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, बजटिंग, ये सारी चीजें, ये सारे प्रिंसिपल्स टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग करते हैं। सिर्फ रिपोर्टिंग ऐसी चीज है जहाँ पे जो जूनियर होता है वो सीनियर को रिपोर्ट करता है, लेकिन वही तो सीनियर बताता तो है तभी जाके वो रिपोर्ट करता है। So all these activities are actually planned. These are all accordingly organized according to the top level management. यहाँ पे lower officials का कोई लेना देना नहीं है। और हम जिस जमाने में है, today we are towards decentralization. We want participation of the workers, employees. We want participation of the people. ताकि हम exactly हमें पता चले कि पॉलिसी इतनी अच्छी होने के बावजूद भी अनसक्सेसफुली क्यों इम्प्लीमेंट की जा रही है। तो ये आज के डेट का, आज के जमाने की डिमांड है, रिक्वायरमेंट है। लेकिन उस टाइम पे जब हम 1920s और 30s की बात कर रहे हैं, उस समय पे सिनारियो अलग था। टॉप लेवल मैनेजमेंट को ज्यादा फोकस किया जाता था, टॉप हेवी मैनेजमेंट हुआ करती थी, और जो नीचे के ऑफिशियल्स थे वो सिर्फ इम्प्लीमेंट करते थे पॉलिसीज को, और कुछ ज्यादा नहीं करते थे। A related literature that preceded the work in administrative management was under continuing development in business schools, often called scientific management. अब ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये इसके जो प्रिंसिपल्स थे, ये थे फ्रेडरिक टेलर करके एक बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। इन्होंने प्रिंसिपल्स बताए साइंटिफिक मैनेजमेंट के, कि इनको लगता था
कि हर एक काम करने के लिए एक समय लगता है। टू परफॉर्म एवरी टास्क यू रिक्वायर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम एंड ड्यूरेशन एंड एफर्ट्स। अगर उतने ही सही तरीके से लगाओगे तो इफिशिएंसी आएगी। क्योंकि अगर हम पढ़ाई के एग्जांपल लेते हैं तो पढ़ाई करने के लिए हम कोई बच्चा 6 घंटा लेता है, कोई बच्चा 4 घंटा लेता है उसी पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए। किसी चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए वन पर्सन माइट कंप्लीट इन 2 hours, वन पर्सन माइट टेक इवन 1 hour. That obviously the difference is between the intellect and the capabilities, but at the same time how much you are distracted, आप टाइम पास कितने कर रहे हो, उसके ऊपर भी ये बहुत चीजें मैटर करती हैं। तो अगर साइंटिफिकली अगर आप अपना काम करें अकॉर्डिंग टू टेलर, तो आप अपना टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए और कम से कम समय में इफिशिएंटली हम वो काम कर सकते हैं, ऐसा टेलर का मानना था। ठीक है, ये उनकी थियरी थी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कि दैट एवरी वर्क कैन बी परफॉर्म इन अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम। लेकिन ये भूल गए कि हर एक पर्सन की कैपेबिलिटीज और इंटेलेक्ट अलग होने की वजह से यू कैन नॉट हैव द सेम टाइम फ्रेम फॉर एवरीबॉडी। कि भाई 100 मीटर भागना है, तो उस 100 मीटर में अगर आप भाग रहे हो और आपके साथ अगर उसेन बोल्ट भाग रहे हैं तो नेचुरली आप तो हार जाओगे, क्योंकि उसेन बोल्ट तो भाई एथलीट आदमी है। उसी तरीके से क्रिकेट में कैसे शॉट खेलते भाई सचिन तेंदुलकर की स्ट्रेट ड्राइव और हमारी स्ट्रेट ड्राइव में थोड़ा सा फर्क होगा कि वो सचिन तेंदुलकर है। एवरी पर्सन इज डिफरेंट, एवरी पर्सन हैज डिफरेंट कैपेबिलिटीज। हर काम को करने का तरीका अलग अलग होता है। जो टेलर ने उस चीज के ऊपर फोकस नहीं किया, क्योंकि उनका एक ही फोकस था कि प्रोडक्टिविटी हमें बढ़ानी है, एफिशिएंसी हमें बढ़ानी है। However, scientific management had less effect on public administration during its principles phase because it focused on lower level personnel in the organization. अगर आप सही तरीके से देखोगे साइंटिफिक मैनेजमेंट को, ये लोअर ऑफिशियल्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, क्योंकि वो एक्चुअली काम करने वाले हैं। और टेलर का क्या कहना था कि लोअर ऑफिशियल जो इम्प्लीमेंट करता है उसको इतने समय में ये काम करना चाहिए, तो एक्चुअली टॉप लेवल पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। You are only concentrating at the lower officials. So obviously it was not that much famous या that much attractive theory. क्योंकि हमेशा टॉप लेवल ऑफिशियल्स को ही लगता था कि थ्योरी अगर बने तो हमारे लिए बने, लोअर ऑफिशियल्स को क्या आता है, उनको कुछ नहीं आता, हम जो बताते हैं वही वो करते हैं। और ये एटीट्यूड आज भी कई सारे ऑफिशियल्स में है, जो चेंज होना बहुत जरूरी है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का इम्पैक्ट इस फेज में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। Speaking in terms of locus and focus, Mohit Bhattacharya has rightly pointed out that the public aspect of public administration was virtually dropped at this stage, and the focus was almost wholly on efficiency. देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस क्या है? पब्लिक, हम काम क्यों करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की? लोगों का फायदा हो, बेनिफिशियरीज आर गेटिंग द बेनिफिट्स आउट ऑफ द पॉलिसी, ये उसका फोकस होना चाहिए था। लेकिन इस फेज में rather than rather than you are helping out the people and for social welfare, all the aspect were related to efficiency. कैसे efficiency बढ़ाए, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाए, इस सिचुएशन को इकोनॉमिकली कैसे इम्प्लीमेंट की करना चाहिए। तो देखिए, हर बार आप efficiency से कोई भी काम नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं कभी कभी थोड़ा नुकसान हो जाता है। When you think only about efficiency, आपकी थिंकिंग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह होती जा रही है कि अगर efficiency नहीं है निकाल दो जॉब में से, अगर प्रोडक्टिविटी नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, बंद कर दो बिजनेस। ऐसा नहीं होता पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, सरकार ऐसा नहीं करती। सरकार गरीब लोगों की सोच का, गरीब वनरेबल सेक्शंस के बारे में सोच के पॉलिसी बनाती है। कई बार नुकसान भी झेलना पड़ता है, हर बार एफिशिएंसी नहीं होती। तो मोहित भट्टाचार्य ने ये नोटिस किया कि इस फेज में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो एडमिनिस्ट्रेटर थे वो लोगों को कम और एफिशिएंसी पे ज्यादा फोकस करने लगे। अरे भाई, अब लोगों के द मेन फोकस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर द पीपल, नॉट एफिशिएंसी। ये लोग भूल गए इस पर्टिकुलर फेज में, अकॉर्डिंग टू Mohit Bhattacharya. The lack of locus, if not perhaps the sharpening new focus of public administration during this period, made itself evident within the university community. अब university level पे भी, academic level पे भी सारे जो technicians थे, professors थे, academicians थे, वो सभी लोग इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, efficiency के बारे में बात कर रहे हैं, but nobody is actually talking about social welfare, nobody is talking about public, nobody is talking about public service. आप क्या कर रहे हो भाई? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा फोकस लोगों के ऊपर होना चाहिए, लेकिन नहीं। इफिशिएंसी कैसे बढ़ाए, इकोनॉमी कैसे बढ़ाए, वो प्राइवेट सेक्टर के लिए सही रहेगा, पब्लिक सेक्टर के लिए वो इम्पोर्टेंट है, पर वो सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके अलावा भी बाकी बहुत सारी चीजें मायने रखती है। Scholars who identified with the study of public administration nonetheless found it useful to establish American Society for Public Administration, which continues to function as the nation's primary association of scholars and professionals of public administration.
and as the sponsoring organization of the FEED's premier journal, Public Administration Review. तो अमेरिका में इस एक मिनट let me complete the topic, just wait. So American Society for Public Administration ये establish की गई इस वक्त पे, and जब ये establish की गई तो उसके बाद इस पर्टिकुलर सोसाइटी ने कई जगहों पे स्पॉन्सरशिप की, कई जगहों पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कोई रिसर्च वर्क है, प्रोफेशनल्स हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, वो भी इन्होंने प्रोवाइड करी, और उनका जो जर्नल था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू, इसको भी वो स्पॉन्सर करते थे, जो हर साल में जिसको रिव्यू किया जाता था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से और किस बेहतर तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ऑलराइट, it symbolized public administration's conscious need to become a profession and a discipline. तो इस फेज में ज्यादातर फोकस यही दिखा गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन should be looked as a job, as a profession, not just like any other activity similar to politics. And at the same time, it was looked upon as a separate discipline than political science. All right. So that was your particular phase 2, which discussed about evolution of public administration with respect to the development of principles which should be implemented universally. लेकिन अगले फेज में हम देखेंगे कैसे किस तरीके से उसमें हम देख सकते हैं कि क्रिटिसिज्म हुआ इन प्रिंसिपल्स का, वो हम अगले फेज में देखेंगे. सो दैट वाज अबाउट द सेकेंड फेज. थैंक यू. अभी